السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے مقوقس شاہ مصر کے نام پتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتر جریج بن مطار کے نام بھیجا، جس کا لقب اپادھی مقوقس تھا اور جو مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ تھا۔ پتر اس پرکار ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے مقوقس عظیم قبط کی اور اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر قبط والوں کا بھی گناہ ہوگا۔ اے قبط والو، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس پتر کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو چنا گیا۔ یہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا: اس زمین پر تم سے پہلے ایک آدمی گزرا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے سبق بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے بدلہ لیا، پھر خود اس کو بدلے کا نشان بنایا۔ اس لیے دوسرے سے سبق لو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے سبق لے۔ مقوقس نے کہا: ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہترین دین نہ مل جائے۔ حضرت حاطب نے فرمایا: ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جسے اللہ نے تمام دین کے بدلے میں کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہودیوں نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور عیسائی سب سے زیادہ قریب ہیں۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بھوشیوانی کی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھوشیوانی کی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم تورات والوں کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے، وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کرے اور اس کی بات مانے۔ اور تم نے اس نبی کا دور پا لیا ہے، اور پھر تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا: میں نے اس نبی کے معاملے پر وچار کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہے اور نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ چھپے کو نکالتے اور کانافوسی کی خبر دیتے ہیں۔ میں اور آگے وچار کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر لے کر آدر کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔
फिर अरबी लिखने वाले एक कातिब लिखने वाले को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में नीचे का पत्र लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए मुकैकिस अजीम किब्त की ओर से आप पर सलाम। इसके बाद मैंने आपका पत्र पढ़ा और उसमें आपकी जिक्र की हुई बात और दावत को समझा। मुझे मालूम है कि अभी एक नबी का आना बाकी है। मैं समझता था वह शाम सीरिया से ज़ाहिर होगा। मैंने आपके दूत का सम्मान किया और आपकी खिदमत में 2 लौंडियाँ भेज रहा हूँ जिन्हें किप्तियों में बड़ा दर्जा मिला हुआ है, और कपड़े भेज रहा हूँ और आपकी सवारी के लिए एक खच्चर भी भेंट कर रहा हूँ और आप पर सलाम। मुकैकिस ने इस पर कोई बढ़ोतरी नहीं की और इस्लाम नहीं लाया। दोनों लौंडियाँ मारिया और सिरीन थी। खच्चर का नाम दुलदुल था, जो हज़रत मुआविया के समय तक बाकी रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने पास रखा और उनके पेट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम पैदा हुए और सिरीन को हज़रत हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया। शाह फारस खुसरो परवेज़ के नाम पत्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्र बादशाह फारस किसरा के पास भेजा, जो यह था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसरा अजीम फारस की ओर। उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की ओर बुलाता हूँ, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की ओर अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, ताकि जो आदमी जिंदा है उसे बुरे अंजाम से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए, यानी हुज्जत पूरी हो जाए। बस तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे, और अगर इससे इनकार किया तो तुम पर माजूस के गुनाह का बोझ भी होगा। इस पत्र को ले जाने के लिए आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना। उन्होंने यह पत्र बहरैन के अधिकारी को दिया। अब यह मालूम नहीं कि बहरैन के अधिकारी ने यह पत्र अपने किसी आदमी के ज़रिए किसरा के पास भेजा या खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी को रवाना किया। बहरहाल जब यह खत किसरा को पढ़कर सुनाया गया तो उसने चाक कर दिया और घमंड में चूर होकर बोला, मेरी जनता में से एक तुच्छ दास अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने फरमाया, अल्लाह उसकी बादशाही के टुकड़े टुकड़े करे। और फिर वही हुआ जो आपने फरमाया था। चुनाचे इसके बाद किसरा ने अपने यमन के गवर्नर बाजान को लिखा कि यह आदमी जो हिजाज में है उसके यहाँ अपने 2 मजबूत और तंदुरुस्त आदमी भेज दो कि वे उसे मेरे पास हाजिर करे। बाजान ने उसे पूरा करते हुए 2 आदमी चुने। एक उसका कहरमान बानवी जो गणितज्ञ था और फारसी में लिखता था। इसरा खुसरो यह भी फारसी था, और उन्हें एक पत्र देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना किया, जिसमें आपको यह हुक्म दिया गया कि उनके साथ किसरा के पास हाजिर हो जाए। जब वे मदीना पहुँचे और
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए तो एक ने कहा, शहंशाह किसरा ने शाह बाज़ान के एक पत्र के ज़रिए हुक्म दिया है कि वह आपके पास एक आदमी भेजकर आपको किसरा के सामने हाजिर करे, और बाज़ान ने इस काम के लिए मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरे साथ चले। साथ ही दोनों ने धमकी भरी बातें भी कही। आपने उन्हें हुक्म दिया कि कल मुलाकात करें। इधर ठीक उसी वक्त जबकि मदीना में यह दिलचस्पी मुहिम चल रही थी, खुद खुसरो परवेज़ के घराने के अंदर उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त बगावत का शोला भड़क रहा था, जिसके नतीजे में कैसर की फ़ौज के हाथों फ़ौजों की बराबर मिलने वाली हार के बाद अब खुसरो का बेटा शेरवह अपने बाप को कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा था। यह मंगल की रात 10 जुमादुल ऊला सन 7 हिजरी की घटना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस घटना का पता वही के ज़रिए चला। चुनाचे जब सुबह हुई और दोनों फारसी नुमाइंदे हाजिर हुए तो आपने उन्हें इस घटना की खबर दी। उन दोनों ने कहा, कुछ होश है, आप क्या कह रहे हैं? हमने इससे बहुत मामूली बात भी आपके अपराधों में गिन ली है, तो क्या हम आपकी यह बात बादशाह को लिख भेजें? आपने फरमाया, हाँ, उसे मेरी बात की खबर कर दो और उससे यह भी कह दो कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक किसरा पहुँच चुका है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए उस जगह जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। तुम दोनों उससे यह भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो कुछ तुम्हारे अधीन है वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारी कौम का बादशाह बना दूंगा। इसके बाद वे दोनों मदीना से चलकर बाज़ान के पास पहुँचे और उसे तमाम बातें बताई। थोड़े दिनों बाद एक पत्र आया कि शेरवह ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। शेरवह ने अपने पत्र में यह भी हिदायत की थी कि जिस व्यक्ति के बारे में मेरे बाप ने तुम्हें लिखा था उसे दूसरा आदेश आने तक छेड़ना मत। इस घटना की वजह से बाज़ान और उसके फ़ारसी साथी जो यमन में मौजूद थे मुसलमान हो गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।